श्री गुरवे नमः। नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। আমি শ্রীমদ ভগবদ গীতা চতুর্থ অধ্যায় দিব্য জ্ঞান যুগ 37 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত কমপ্লিট করছে। আজি 38 নম্বর শ্লোকରୁ নবা। ଶ୍ଲୋକଟି ଏଇଭଳି। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत् स्वयं योगो संसिदः कालेन आत्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत् स्वयं योगो संसिदः कालेन आत्मनि विन्दति। आबृत्ति ଯୋଉମାନେ କରିବେ କରନ୍ତୁ। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। समस्त भक्त वृंदों को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। एहार अर्थ इह जगतरे दिव्य ज्ञान सदृश दिव्य और पवित्र आउ किछि नाही। समस्त जोगर परिपक्व फल हेउछि ए दिव्य ज्ञान। जे एहा प्राप्त होइछि से कालक्रमे निज आत्मारे विहार करे। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। ଆଉ କିଏ କରିବେ କି? जय श्री कृष्ण। मु पढ़ुची। କରନ୍ତୁ। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काजे कालेनात्मनि विन्दति। एही संसार रे ज्ञान समान पवित्र कारक तत्व आउ किछि नाही। यह निस्संदेह दीर्घ काल धरी कर्मयोग साधना द्वारा शुद्धांतकरण होइतिबा मनुष्य एही ज्ञान को स्वतः आत्मा रे पाई पारंती। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।
ତେବେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ମହିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, କରିକି ଆଜି ସେ ଜ୍ଞାନର ମହିମାର ସେ ଉପସଂହାର କନକ୍ଲୁଜନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜି। ତେବେ 35 ରୁ 37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମୋହମୁକ୍ତ କରାଇବ, ପାପରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପାପ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ସବୁ ଜାଳି ପୋଡିକି ପାଉଁଶ କରିଦବ, ଏଇଭଳି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସେ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯେତେ ଜୀବ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତ୍ମର କଲ୍ୟାଣ କେତେବେଳେ ହବ? ଆତ୍ମର କଲ୍ୟାଣ ହବ ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆକୁ, ଯଦି ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ସମ୍ଭବ? ଯେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇଯିବେ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆୱାର ସ୍ୱଜନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲୋକ, ଆମର ଇଭେନ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ବାପା, ମା ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ বা ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଡେଫିନେଟଲି ଏମାନେ ଆମର ସ୍ୱଜନ। ଶରୀର ଆମର ଯୋଉ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଛି, ଆମର ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ଜନ୍ମରେ, ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସକ୍ତି ରଖିବାର ନାହିଁ ତାକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ହିଁ ଆମକୁ ତଳକୁ ଭିଡ଼ିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାନି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାନି, ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବାନି, କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୀବଙ୍କର କରିପାରିବାନି। ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ସରୀସୃପ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜୈବନ ଦେବତା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କର କରିବାର ଅଛି। ପିତୃପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମ ପାଖରେ। ନ କଲେ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଆମେ କରିପାରୁନେ। ଏଇଭଳି ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ତେବେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଫାଇଦା ଜ୍ଞାନର ବା ଜ୍ଞାନର ଗୁଣ ଦାନ କଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, এই ভগবত গীতা ଯୋଉ ଭଗବାନ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭଗବତ ଗୀତା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତାରେ, ମାନେ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଳିକି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ହି ଜ୍ଞାନେନ ଶତ୍ରୁଷ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ କନେକ୍ସନ ଇଜ ଅନଷ୍ଟେବଲ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଅଛି ଦେଖିବେ। ଓକେ, ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇହ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଇହ ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ, ଇହ ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ, ন ହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରଂ ବିଦ୍ୟତେ। এই ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଆଉ କିଛି ପବିତ୍ରକାରୀ ବସ୍ତୁ ବା शुद्धकारी पदार्थ ए दुनिया रे नहीं। ये ज्ञान को छाड़ीदेले, ये दिव्य ज्ञान कहते जोग संसिद। ये ज्ञान आमको जोग संसिद आमर आमर भक्तिर परिपक्वता आनी। फल कौन हम ना से ज्ञान तत् तत् से ज्ञान जो कहते से ज्ञान
कौन हम स्वयं कालेन आत्मनि विन्दति से धीरे धीरे तार निज भितरे ज्ञानर आनंद को उपलब्धि कर अर्थात अनुभव कर आत्मारे माने निज भितर से आनंद पाइबा को आरंभ कर जितेबाला यही से धीरे धीरे भक्ति तार परिपक्वता आसीज स्वयं जोग संसिद यही श्लोक आम आपको डिटेल्स आलोचना करवा। सेकंड तेरे तबे श्लोक आम जानिले जे धीरे धीरे जितेबाला लोक तार दिव्य ज्ञान को प्राप्त करिवो से उपभोग करिवो से दिव्य ज्ञान को उपभोग करिवो ता निज भितरे फल से आत्मारे ता निज भितरे माने आत्मारे से सुख शांति अनुभव करिवो एई बड़ी भगवान श्लोक रे कहउछन। फर्स्ट कहउछन यह माने ए संसार कथा कहउछन ए संसार होउची एक्चुअली कौन ए संसार होउची मृत्यु संसार वर्तमान अर्थात आमे ये हूँ जन्म मृत्यु चक्र ये लगी रही संसार रे आमे ये बारंबार फेरुचे ये हूँ संसार फल आमे नित्यबद्ध कंडीशन शो भगवान तीनोटी शक्ति अच्छी जहाँ को आम कहे अंतरंगा बहिरंगा एवं तटस्थ शक्ति एक्सटर्नल इंटरनल मार्जिनल तीनटा शक्ति अंतरंगा निजे भगवान बहिरंगा प्रकृति जगत तटस्थ आमे जीव तेणु आमे जेहेतु तटस्थ शक्ति आमे भगवान को जो आमर जो स्वाधीनता अच्छी आमे से स्वाधीनतार मिसयूटिलाइजेशन करी आमे तटस्थ शक्ति जो भगवान को अलग है उपभोग करने कथा चिंता कले जेबठू अलग है आमे निज सुख कथा भाविले सेबेठू आमे हो जाइए नित्यबद्ध आमे केबेठू नित्यबद्ध होइचे ता भी आमे जानिनी जेहेतु जानिने माने आम जेबेठू आमे अलग होइचे माने ये सिंस टाइम इमेमोरियल हमर हमर स्मरण ही नहीं सेति पई कुआ जाए नित्यबद्ध को काल रु आमे कंडीशन देइचे बारंबार जन्म नउचे एवं ए संसार रे आमे कर्म करूचे आ यही सांसारिक कर्म करिकी आमे मुक्ति पाउने सांसारिक कर्म हमको मुक्ति दे पारुनी केवल भक्ति जोग प्रैक्टिस करी जदि भगवानंकर शरणागति आमे नबा ताहले कौन हबो ना हमर जो वास्तविक स्वरूप तार ताकू पुनर्जीवित करि परिबा एक्चुअल पोजीशन हमर जोटा कन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्वरूप ताकू आमे पुनर्जीवित करवा सुप्त अवस्था अच्छे एवं आमे मुक्त हवा भक्ति योग करी भगवान कर शरणागति नेले किंतु हेले भी सर्टिफिकेट रही जो आमे दिने बद्ध थिले बोली सेति मुक्त हेले आमे नित्य मुक्त भी हमको कुआ जाई पारिबनी जदि वो नित्य मुक्तर सब सुविधा हमको मिल किंतु नित्य मुक्त हमको कुआ जाई पारिबनी जेहेतु सर्टिफिकेट रही गला ना आमे केबे बद्ध होइतिले ए जगत को आसीतिले उपभोग करिया पाई तेबे भगवान ए श्लोक रे कहउछन ये संसार एही बड़ी यह
आमे संसारिक कर्म करिके आमे मुक्ति पाई पारुनी। मुक्ति पाई कौन करिया पड़िबो? कौन कले हमर मुक्ति हबो? आम हृदयर जदि शुद्धिकरण हबो। बहुत अनर्थ अछि, शुद्धिकरण दरकार। किए करि परिबो शुद्धिकरण? बा पवित्र हवा दरकार। भगवान कहउचंदी न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यह विद्यते। ये ज्ञान भली पवित्रकारी पदार्थ दुनिया रे किछि नै। ये दिव्य ज्ञान वेरी पावरफुल। भगवान कहउचंदी ये ज्ञान भली दुनिया रे आ किछि नै जे हमकु शुद्ध करि पारिबो। अनेक प्रायश्चितकारी क्रिया अछि शुद्ध करिबा पाए। वेदरे लेखा आइछि यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, तीर्थाटन, पुण्य नदी रे स्नान, ये सब अच्छी। किंतु ज्ञान सहित माने तुलनीय नुहंती। मोस्ट प्यूरिफाइंग एजेंट ए ज्ञान। कहीं ना ये ज्ञान भौतिक ज्ञान नुहे जो ज्ञान आम स्कूल कॉलेज रे पढ़ुचे। ये सही ज्ञान नुहे। ये ज्ञान हूँ अपौरुष्य। अपौरुष्य माने ये मनुष्य ये ज्ञान को सृष्टि करिनी कि करि पारिबनी। ये ज्ञान आसुची आध्यात्मिक जगत। ये ज्ञान आम हृदय रे प्रकाश पाए। जेतेबेले भगवानंकर अहेतुक कृपा हबो से आम हृदय रे ज्ञान को प्रकाश करिवे। ज्ञान दीपेन भास्वत। एवं जेहेतु ये भगवान को आसुची एवं भगवान ये भौतिक जगत रे जहाँ दोष अछि से दोष सहित तार कौन संपर्क नहीं। से ताको स्पर्श करू ना। भौतिक जगत जो तीन गुण ता द्वारा से प्रभावित हो ना। तेणु भगवान भौतिक दोष मुक्त। जेहेतु भगवान भौतिक दोष मुक्त ये ज्ञान तांकटू आसुची। ज्ञान भी भौतिक दोष मुक्त। सेहिति पई दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एवं बेमिशा आर कंपैरिजन नहीं। आपको का संगे तुलना करि परिबानी। ये ज्ञान कौन? हम अनेक थर आलोचना करछे। ईश्वर, जीव, माया। ईश्वर अंतरंग शक्ति भगवान, जीव तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी, माया व जगत प्रकृति बहिरंग शक्ति भगवान। ये तीनोटी शक्ति अंतरंगा, तटस्थ, बहिरंगा व ईश्वर, जीव, जगत व माया ये तीनोटीर ज्ञान ही दिव्य ज्ञान। यदि तीनोटीर ज्ञान आम पाखरे अछि ताले दिव्य ज्ञान अछि। एवं यही होची आध्यात्मिक ज्ञान जे आमर स्वरूप को ज्ञान करे। आमे किए, ईश्वर किए, जगत कौन, जगत और ईश्वर सहित आमर संपर्क कौन, यही तो ज्ञान। उत्तर रे आमे पाइबा जे आमे किए, आमे होचे आत्मा भगवानकर अंश, कृष्णंकर दास। कृष्णंक पाई ये जगत सहित आमर संपर्क कौन? ये जगत होची माया। माया नॉट दिस माने ये जगत आम पाई नुहे। भौतिक जगत आमे रंग प्लेस रे अच्छे, गलत जगह रे। आध्यात्मिक जगत रे आमे रहिबा कथा। तेणु यही भली आमे कृष्ण कृष्णंकर एवं ये जगत होची आम पाई नुहे। आम पाई नुहे ये जगत। यही ज्ञान जदि हो गला ताले आमे प्यूरिफाइड हो जिबा, अर्थात आमे पवित्र हो जिबा।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ ହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରଂ ଇହ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଭଳି ଆଉ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ପବିତ୍ର, ତାକୁ ପାଇବା ପରେ ଆମର କଣ ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଦ, ତତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଦ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଯୋଗ ସଂସିଦ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶରଣାଗତି ସହିତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବ। ଯୋଗ ସଂସିଦ ଲାଗିଗଲା ପରେ କଣ ହବ? କୌଣସି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତାର ରହିବନି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ, ଭୌତିକ ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତା ଶୂନ୍ୟମ ମାନେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ରହିବନି। ଭୋଗ କରିବା, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଭୋଗ କରିବା ଜିନିଷ, ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିବନି। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା, ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ। ଭୌତିକ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଇଚ୍ଛା ଆମର ରହିବନି, କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଇଚ୍ଛା ଆମର ରହିବ ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି ଅନାବୃତମ, ମାନେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବା, ये जो ज्ञान, ये ज्ञान हमको आवृत करि परिबनी। ये ज्ञान दूरे रहिब। कर्म, कर्म माने सकाम कर्म, कौनसी कर्म करिकी फल पाइबार जो इच्छा, सेथुरु मध्य आमे दूरे रहिबा। आदि आदि कहदेला माने बाकी अन्य जिनिस आमे जो अनासक्त हेकी कर्म करूचे बा योग अभ्यास करूचे बा सांख्य फिलोसफी आमे पढ़ुचे, ए सब प्रति आउ आग्रह रहिबनी, ताठु दूरे रहिबा। ये होला सेकंड इफेक्ट। थर्ड, आमे कोन करबा ना, ए ज्ञान पाइले भक्ति पछरे आगेइले, भक्ति तो करबा आनुकूल्यम, अर्थात कृष्णंकर पाई जहा फेवरेबल, कृष्ण जहा भल पांती, तांकर इच्छा सेही काम आमे करिबा। से जहा चाहुचंती, तांकु जोटा फेवरेबल, अर्थात भगवान जमी भगवान गीतार कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तांकु भल लगुच भेज शाकाहारी, किंतु आमे तांकु नॉन भेज दबा, नॉन भेज नाई, सेटा अनुकूल्यम नुहे, कृष्ण को फेवरेबल नुहे। तो यही एवं कृष्ण अनुशीलम, कृष्ण अनुशीलम माने आमे जहाँ भी कर्म करिबा कृष्णंक सहित संपर्क थिबो से कर्म। फॉर एग्जांपल, मु फूल गछ लगेउची, फूल गछ लगौची अर्थ मु भगवान को फूल अर्पण करूची, सेति पय लगौची। तमाने कृष्ण को सहित संपर्क रहउची, जे कोनोसी कर्म मु करूची, जे कोनोसी कर्म। एही भली जेतबेले आमे ज्ञान पाइबा, दिव्य ज्ञान पाइबा, दिव्य ज्ञान होची आमे कृष्णंकर, कृष्णंक पाई ए ज्ञान जेतबेले पाइबा, आमे भक्ति पछरे आगो को आगेइबा, हमर एई चारोटी इफेक्ट आसीबो। कोन हम जानले कोन चारोटी? जे हमर भौतिक इच्छा किछि रहिबनी, केवल कृष्णंक सेवा हमर इच्छा रहिबो। ज्ञान कर्म हमकु आवृत करि परिबनी,
कृष्ण जहा फेवरेबल से ही करवा एवं जेकोसी कर्म करवा से कृष्ण सहित तार संपर्क थिबो एई भली हेले कोन हबो ना आमे भक्तिर परिपक्व अवस्था आसू ये चारोटी जिनस आसीगला भक्ति कले ये चारोटी जिनस आसीगला भक्तिर परिपक्वता आसीजु भक्तिर परिपक्वता अवस्था माने आसवाटा ही इंपोर्टेंट भगवान कहते हैं ज्ञान जो माने प्राप्त करुचंदी परिपक्वता भक्ति जोगरे से माने कौन करचंदी ना लागी रहउचंदी एवं भक्ति रे परिपक्वता माने सिद्ध होउचंदी सिद्धि लाभ करुचंदी केबे सिद्धि लाभ करिवे भगवान कहउचंदी कालेन श्लोक रे कहउचंदी कालेन आत्मनि विन्दति कालेन धीरे 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 प्राप्त करिवे कौन धीरे धीरे आमे देखिचे ए चैप्टर जेतळ आरंभ होला अर्जुन सबु बेले युद्ध न करिया पई युक्ति करूथिले सन्यास नेबे काहे कि ना से भाबुथिले सन्यास नेले से दिव्य ज्ञान प्राप्त करिवे एई भली बहुत लोक मध्ये भाबंती सन्यास नै गले हमकु दिव्य ज्ञान मिली जिवो मायावादी माने मध्ये भाबंती जे जदि आमे ड्रेस चेंज कर दवा गेरुआ वस्त्रटे पिंधिबा लंडा हो जिवा तिलक लगेबा बा छुटी रखिबा ए सब कले हमर दिव्य ज्ञान आसी जिवो आमे भौतिक दोषरु मुक्त हो जिवा किंतु ए भली दिव्य ज्ञान को प्राप्त करा जायनी केमिति भगवान कहउछन्ती कालेन इन ड्यू कोर्स धीरे धीरे भगवान कहउछन्ती ए जो सिद्ध बा प्रेम अवस्था परिपक्व अवस्था भक्तर माने प्रेम अवस्था को हमको उत्तीर्ण होबाकू पड़िबो सेटा हुई सिद्ध अवस्था से सिद्ध अवस्था प्राप्त करिया पई भगवान कहउछन्ती टाइम लागे समय लागे काहे कि समय लागिबो ना ए भक्ति पथरे विभिन्न स्टेप अछि हमको से स्टेप अतिक्रम करबा को पड़िबो ये ज्ञान प्रथम जो जिनिस होचे ज्ञान आसिला माने हमर भक्ति प्रति श्रद्धा आसिला सेकंड स्टेप ज्ञान नेक्स्ट स्टेप श्रद्धा आसीगला भक्ति प्रति श्रद्धा आसिले थर्ड स्टेप आसिला साधु मानकर संग करबा हमें थर्ड स्टेप साधु संग कले फोर्थ स्टेप आसिला भजन क्रिया आमे कोनोसी आध्यात्मिक गुरु पाखु जाई तांकर दीक्षा नहीं आमे भक्ति करवा साधना करवा भक्ति साधना आरंभ करवा फिफ्थ स्टेज अनर्थ निवृत्ति ए भली करू करू कोन हबो नाम हृदय रे जो षड रिपु अछंती काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये पड़ेगा सिक्स्थ स्टेज निष्ठा तापरे हमर भक्ति प्रति दृढ़ता आसीबो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हम भक्ति एट स्टेज रुचि तापरे हमें हमको भल लगे आरंभ हम भक्तिटा भल जेकोसी जिनस लगे कौन करवा आहरी आमे करवा आसक्ति बढ़िबो ता माने ता प्रति स्ट्रांग डिजायर ना ये भक्ति मु छाड़ी परिबिनी एई बड़ी स्टेज आसिला एई बड़ी स्टेज आसला परे भाव नेक्स्ट स्टेज होची भाव एवं फाइनल स्टेज होची प्रेम भगवान को प्रति प्रेम आसला भाव होची इमोशन हमें इमोशनली भगवान को सहित जोड़ी हो गले किंतु फाइनल स्टेज तापर आसीबो प्रेम अर्थात आमे आ किछि जानि ने दुनिया रे केवल भगवान को प्रेम ही जानि छे तांकु केमति भूल पाइबा हमको किछि दिसिबो प्रेम स्टेज फाइनल स्टेज सिद्ध सेठी सिद्ध अवस्था ये होची भक्तिर
परिपक्व अवस्था जोग संसिद्ध जोगर परिपक्व अवस्था जोग माने राइपेंड नहीं गला पाची गला ये परिपक्वता अवस्था आसीगले कौन हम जिते भक्ति जोगरे आम परिपक्व हो गले कौन हम भगवान कहते आत्मनि बिंदति आत्मनि बिंदति माने आम भितरे आम आनंद अनुभव करवा ए दुनिया रे आमे सुख शांति ये सब खोजुचे आनंद ये सब खोजुचे कोठी खोजुचे एटी सेठी खोजुचे आमे चेष्टा करुचे धन संपत्ति स्त्री पिला भोग्य वस्तु एइथुरु आमे सुख शांति आनंद पाइबा पाई एइथिपाई आमे समय एवं हमर एनर्जी सब किछि एइथरे लगेई दउचे किंतु स्टिल आमे पाउने ना सुख ना शांति ना आनंद कहीं ना ये हूँ भौतिक जगतर वास्तविकता रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ये हूँ दुखालयम आमे जो सुख शांति खोजुचे गलत जगार खोजुचे गलत जिनस खोजुचे ना ये भौतिक जगतर अच्छी ना ये धन संपत्ति स्त्री पिला ये सब जिनस अच्छी नहीं सुख शांति बाहर नहीं भगवान कहते बाहर नहीं आत्मनि बिंदती माने कहते आम जो खोजुचे सीटी नहीं बाहर ये आम भितर अच्छी कहते दिव्य ज्ञान स्तर रे आम अवस्थान कले परिपक्व अवस्था जो आसीज भक्तिर सेतबले व्यक्ति शांति पाई अन्य कुआड़े से जीवनी खोजी बुलबनी अन्य कुआड़े निज भितरे ही से शांति पाइब आत्मा रे आनंद अनुभव करी जो आनंद अनुभव करिवो भगवान मध्य आगे जाई कहिबे जम लब्ध्वा च अपरं लाभम जम यम लब्ध्वा च अपरं लाभम जहाकू लाभ कला पाइबा परे लब्ध्वा च अपरं लाभम आउ लाभ करिवार आउ किछि पाइबार आउ इच्छा हुएनी मन्यते न अधिकम तत आउ किछि पाइबार इच्छा हुएनी यम लब्ध्वा च अपरं लाभम मन्यते न अधिकं ततः ए लाभ पाइगला परे जो आनंद मिलुची आत्मा रे ये लाभ पाइगला परे आउ अधिक लाभ किछि पाइबा पई हमर इच्छा रहिबनी याट भी नाही आउ किछि अधिक लाभ से श्लोक रे भी भगवान कहबे जस्मिन स्थित सही अवस्था रे रहिले कोटी सही भक्तिर परिपक्व अवस्था रे बा ज्ञान स्टेज रे रहिले कोन हबो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते न दुखेन गुरुनापि से दुख कष्ट जेते बड़ हो भयंकर भी हो गुरुनापि से विचलित हबन जेते बड़ विराट दुख बा कष्ट बा समस्या आसले भी से व्यतिग्रस्त हबन कहीं जोग संसिद्ध से गला जोगरे परिपक्व जो भक्ति जोगरे से परिपक्व हो गला एवं आत्मा भितर से अनुभव करुची आनंद खुशी सुख सब किछि से आत्मा रे विहार करुची एवं उपभोग करुची तो एई बड़ी ए श्लोक जदि आमे ताकू माने यार जिस्ट को देखिबा भगवान कहउचंदी जे आमे कि ज्ञान इंपोर्टेंट काहे कि आमे अज्ञानी आमे अज्ञानी आमे अज्ञानता रे अछि फल रे बंधन रे अछि अज्ञानता हमर बंधन र कारण किंतु भगवान कहउचंदी ए ज्ञान ए दिव्य ज्ञान हमकु मुक्ति दब ज्ञान प्राप्त करी आमे जानू जे आमे कोन कृष्णंकर एवं कृष्णंक पाई
ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଭକ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦବ। ସେକେଣ୍ଡ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି କାହିଁକି ଦବ? ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ଶୁଦ୍ଧି ଇଏ ହଉଛି ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ତାଠୁ ବୋଳିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛେ, ମାନେ ଅତୀତ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ଅଗ୍ନି ସହିତ, ଜ୍ଞାନକୁ ନୌକା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ପାପରୁ ବା ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, এইଭଳି ଯୋଉ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଏଇ ମିନିଂ ଆସୁଛି। ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହବା, ପାପରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା, ପାପ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାନେ ହଉଛ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। କୋଉ କାଳୁ ଏ ଜଗତରେ ତମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ତମର ଚାଲିଛି, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଷଡ଼ରିପୁ ଭରି ରହିଛି। ଅନର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ପୁଣି ପାପ କରିବ। এই ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହବ। এই ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଏ ଜ୍ଞାନର ତୁଳନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚଲେସ୍ ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧଉଛେ, ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଗାଧଉଛେ ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ। ଆଇରନ୍ କରିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଗଙ୍ଗା ମାଟି ବା ପାଣି ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ସେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦଉଛେ ଦରକାର ପଡିଲେ। ଇଏ ସବୁ ମାନେ ଭେଜାଲ। ଶୁଦ୍ଧ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ନବାରେ। ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସ୍ନାନ ନ କରିଛେ, ଟଏଲେଟ ଯାଇନେ, ବ୍ରସିଂ କରିନେ, ତଥାପି ବି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରିବା, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା। ଏତେ ପବିତ୍ରକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବା କିଛି ବି ପବିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ନିଜକୁ କ୍ଲିନ କଲେ ପବିତ୍ର ବା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। এইଭଳି କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ବୋଲିକି ପବିତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନୁଶୀଳନ କର। ଏ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, କେବଳ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ୟାକୁ ସବୁ ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତମ ଶରୀର, ତମ ମନ, ତମ ବୁଦ୍ଧି, ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତମର ପାଖରେ ଯାହା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ମୋ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଭାବ ଯେ ତମେ ହଉଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ମୋର ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ମାରିବି, କାଟିବି, ହାଣିବି, এই ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ କେମିତି ପବିତ୍ର ହବ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏପରିକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ
जदि मोर आदेश अनुसार मोर इच्छा अनुसार मोर प्रसन्नता पाई करूच ताठू अधिक पवित्र कार्य ए संसार रे आउ किछि नाही। भगवत प्रसन्नता कृष्णଙ୍କ प्रसन्नता छाड़ी अन्य प्रसन्नता अर्थात निज शरीर को खुशी करने पाई इंद्रिय भोग बा निज शरीर सहित संपर्क थिबा अनेक शरीर खुशी करने पाई कार्य ये पवित्र नुहे। केवल भगवान प्रसन्नता पाई जो कार्य आम करुचे से ही पवित्र। जेतेबेले एई अंडरस्टैंडिंग एई बुझामणा हमर आसीगला आमे कोन करिबा भगवान प्रसन्नता पाई आमे धीरे धीरे काम करिबा भक्ति रे आगो को बढ़िबा ताहले कोन हबो भगवान कहउचंदी काले न धीरे धीरे हमको जना पड़ी जीवो कौन स्वयं आत्मनि विंदती जना पड़ी जीवो जे आम भितरे आमे आनंद अनुभव करूचे एटा जना पड़ी जीवो। जदि आपण खाउचंदी खाए आपण पचारुचंदी कि आपण पाखरे जे बसथिबा आपण जे खाद्य देछि पचारुचंदी मु आ खाइबी कि ऑटोमेटिकली आपण जो ग्रास नौचंदी जो गुंडा नौचंदी प्रत्येक गुंडारे आपणकर धीरे धीरे आरंभ होउची तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति। प्रथमे भल लागिवो खुशी लागिवो खाइबाकू आनंद आसिबो रुचि आसिला तुष्टि तापरे पुष्टि एमती खाउ खाउ गोटे जोड़े तीनटा चारटा पेट भरी जीवो गोटे स्टेज आसिबो आ नाही तो आमे निजे जानुचे सेमती भगवान कहउचंदी समय अनुसार जेतबेले आमे भक्ति रे आगु को बढ़ी जीवा हमकु सिद्धि मिलिबो धीरे धीरे आमे आगु को बढ़ी गले आमे जानि आमे भीतर भीतर आनंद अनुभव करिवा सिद्धि मिलिबो। सिद्धि कोन सिद्धि होउची जे मु जा करूची ए शरीर रे ए मन रे ए बुद्धि रे ए विचार जा मु करूची सब भगवानकर खुशी पाई यही हूँ आमर स्वरूप ये अनुभूति हो सबुठू पवित्र स्थिति बोली भगवान कहते यही हूँ जोग संसिद अवस्था जोगरे परिपक्व हो भक्ति जोगरे परिपक्व हो भगवत ज्ञान संपूर्ण पवित्र आमको आनंदमय स्थिति को नहीं जीव यही भगवान कहते तो यही पर्यंत आम देखिले कृष्ण माने दिव्य ज्ञान व भक्तिर गुणगान कले बहुत सुंदर भाव 35 नंबर श्लोक रु करी आज भक्ति से गुण गान कर उपसंहार कले कृष्ण कहिबे जे किंतु ए भक्ति रे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस होची श्रद्धा जदि आमे ज्ञान पाइले ही हमर श्रद्धा आसीबो जो पर्यंत श्रद्धा जदि हमर नाही हम किछि कर पाए सेते भगवान फर्स्ट ए श्लोक कहिबे जे जदि जनकर श्रद्धा अछि भक्ति करिवारे कोन हबो सेटा कहिबे नेक्स्ट श्लोक एई बळी हमें ए श्लोक को देखिले किसी डाउट थिले भी पचारि परिबे। किसी डाउट नहीं ना ओके आज ये विराम नवा ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।